I'll start. See, how do you describe position, relative motion in one dimension? First, I'll explain in one dimension. How do you describe position of this particle? Say, how will you describe position By of this points, particle? coordinates. By coordinates. So to write the coordinates, you need x and y axis and origin, right? So let me take an object on which I'll fix up x-axis, y-axis, and origin. This is an object to which I'm calling frame of reference. So this is particle P, right? What I'll do, I have fixed up x and y axis somewhere, and I'll measure the position of this particle with reference to this axis, right? I'll say this is Yes, its position. Let's write it as this is position of P with reference to A. Some other person might shift this x-axis here and y-axis here. He might say, no, I'll start from here. That means this is origin, this is x-axis, and this y-axis. He will say, position of point P is this. This is position of point P with respect to me. Me is B, right? So x position of P with respect to B is this. Whatever B its x coordinate, right? So whatever is x coordinate of P with respect to this is position of P with respect to B, and this is position of P with respect to A. So now I know what is position of P with respect to A and position of P with respect to B. All right? Right now? Yes, Now, sir. these two axes are fixed over some object, right? And that becomes my frame of reference. So this system along with the object on which I have kept the or placed the origin is known as frame of reference. And this object, this axis, and this thing is known as my frame of reference. So this is one frame of reference and this is another frame of reference. So position of the particle with respect to this frame is something else, and with respect to this frame is something else. All right? Sir. Okay. Now, if I assume this to be fixed frame or whatever, and try to write position, explain the position of this with respect to this. So I'll say this is position of A with respect to B. So x A by B is read as position of A with respect to B. X P by A is position of X with respect to, sorry, position of P with respect to A. X P by B is position of P with respect to B. Hello. yes, So I hope you can figure out frame of reference here. See, you can figure out position of particle with respect to those frames. I'm using two different frames here. A and B are two different frames. To what I'm calling frame? Frame is an object on which I have kept origin along with x and y axis. So this thing is known as frame. I have fixed x axis and y axis, something like this. On this. So this is frame, right? This is frame, and this is another frame. Okay. So when I say frame of reference means what? System of x-axis, y-axis, origin kept at some point. Along with that point is known as frame of reference. इसके रिस्पेक्ट में मैं उस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने वाला हूं. किस पार्टिकल का? सम पार्टिकल P. तो अगर मैं इसके रेफरेंस में P की पोजीशन बताने करूं तो दिस इज पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A. तो इसको मैंने क्या नाम दिया? X of P विद रिस्पेक्ट टू A. ये क्या है? दिस इज X of P विद रिस्पेक्ट टू B. ये क्या है? X of A with respect to B. Now, from this figure, can you
state like something like this. मार्कर कहाँ गया? सर पोजीशन, हाँ आप वो डायग्राम एक बता सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? वो डायग्राम आप एक बार वापस बता सकते हैं? बताते सी, मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं। तो पिछले बार हमने देखा था, पिछले लेक्चर में, कि सब कुछ ही रिलेटिव होता है। पोजीशन भी तो आप किसी के रिस्पेक्ट में बताते हो। एक पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है। तो मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड। तो पोजीशन जो पहला वर्ड है वही रिलेटिव है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे पोजीशन आप डिस्क्राइब करते हैं। मैंने पूछा था आपसे ये पोजीशन कैसे बताओगे, तो आपने बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, राइट? एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे एंड देन विल डिस्क्राइब इट्स कोऑर्डिनेट्स। सही है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां लेंगे, वो चॉइस है आपके ऊपर। तो मैंने कोई पॉइंट पकड़ा ए, किसके ऊपर? कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स नेम द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एज ए। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने वो फ्रेम फिक्स कर दिया, कौन सा? एक्स और वाई एक्सिस वाला, ओरिजिन उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, आ रहा समझ में? जी सर, जी सर। हाँ, तो ये पूरा मेरे लिए फ्रेम बन गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको यूज कर वर्ड बोलो मैं? ये एक्स वाई एक्सिस, इसको मैंने किसी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर पिन कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट, ये सब मेरे लिए फ्रेम है। ठीक, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं दूसरा फ्रेम चाहिए मुझे, मैंने ठीक कोई बात नहीं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी और उसके ऊपर पिन कर दिया एक्स एक्सिस, तो ये दूसरा फ्रेम हो गया। सो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए। अब पी का पोजीशन में डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आपका? दिस इज पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नहीं सर, नहीं है। नहीं, दिस इज पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी। हाँ सर। दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जी सर। बस, तो ये अब देखो, ये है position of p with respect to b. Can I write it as position of p with respect to a, position of a with respect to b? सर अगर हाँ, हम लोग ये कहें कि पोजीशन ऑफ, मतलब अगर ऐसा बोले कि बी रिस्पेक्ट टू ए और बी रिस्पेक्ट टू पी दोनों एक ही टाइम पे सेम जैसा हुआ, तो मतलब दोनों एक ही प्लेन पे है, तो बोल सकते हैं सर? क्या 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 मैं बिल्कुल नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर बी बी रिस्पेक्ट टू ए अगर उसी प्लेन पे है और बी रिस्पेक्ट टू पी भी उसी प्लेन पे है, तो दोनों सेम ही प्लेन पे है ना? प्लेन पे क्या बेटा, मैं तो सेम लाइन पे लेके चल रहा हूँ। प्लेन छोड़ दो, ये तो सेम लाइन में है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, सो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है ना, अपने सेम लाइन पे ही, एक ही एक्स एक्सिस ही है अपने को यहाँ पे। ठीक है, सो एक्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज पी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस सॉरी प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में प्लस उस फ्रेम का पहले मतलब किसी भी पोजीशन, जैसे पी है, एक कोई 1 और 2 फ्रेम है, तो पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज 1, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा। आ रहा समझ में? ओके, सो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन आप कैसे निकालो? मैथ्स में और भी हम लोग ये पढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो फिर से आप वहां पे मैथ्स पढ़ोगे बट दूसरे नाम से, द नेम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो x coordinate of p with respect to b is what? X coordinate of p with respect to a plus x coordinate of a with respect to b. ठीक है? Okay. Now, this particle is in motion or at rest? How will I know? सर वो भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ए के रिस्पेक्ट में चल सकता है, बी के रिस्पेक्ट में चल सकता है, दोनों के रिस्पेक्ट में चल सकता है, दोनों के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, वो तो कुछ भी अभी पता नहीं। ठीक, तो पी तो चलता है नहीं चलता मालूम बाद में। ए का क्या है? ए खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक ओरिजिन फिक्स किया था, तो ए चलेगा या ए रुका रहेगा? वो रुका रहेगा। ए कैन ऑल्सो मूव। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चल सकता है।
यही कॉम्प्लिकेशन है। वही तो हमने समझाया था लास्ट लेक्चर में, ट्रेन ली थी, ट्रक लिया था, ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया था, तो वो भी तो चल रहा था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट पे हो सकता है और चल भी सकता है। नो? हाँ सर। So frame of reference may also move or at rest, be at rest. What about B? B भी चल सकता है, रेस्ट हो सकता है। P भी चल सकता है, रेस्ट हो सकता है। बट ये किसी के रिस्पेक्ट में चलेगा, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, if I differentiate the two, this expression with respect to T, तो I get d by dt x with of P with respect to B. इसको हम नाम देते हैं relative velocity of P with respect to B, या velocity of P with respect to frame B. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Now this is read as velocity of P with respect to A, and this is read as velocity of A with respect to B. Yes. So velocity of P with respect to B, velocity is equal to velocity of P with respect to A plus velocity of A with respect to B. So ये relation है velocities के लिए। ठीक है ना? क्वेश्चन इज, कैन दिस पार्टिकल एक्सेलरेट? पार्टिकल पी एक्सेलरेट होगा कि Yes, sir. नहीं हो होगा? सकता है. कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता अच्छा, हाँ। और ये ए का क्या स्टोरी है? फ्रेम है। उसका एक्सेलरेट भी हो सेम- सकता है? उसका भी सेम स्टोरी है। तो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन का रिलेशन क्लियर है? हेलो? Yes, sir. अब देखो, इनमें से कोई अगर मैं चाहूं तो ग्राउंड पे भी फिक्स कर सकता हूं। सपोज बी इटसेल्फ बिकम्स ग्राउंड, बी ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड तो नहीं चलेगा फिलहाल के लिए, राइट? तो अगर बी ग्राउंड हो गया, बी जो है वो ग्राउंड हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बोलूंगा, जिसको मैं सिर्फ वीपी लिख दूंगा। इन केस ऑफ बी इज सेम एज ग्राउंड, बी इज ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए हम कुछ नहीं भी लिखते, कुछ ना लिखा हो तो उसको समझ जाना ग्राउंड है। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? सो इससे एक शॉर्टकट जैसा बन गया, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये शॉर्टकट जैसा बन गया। अगर जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड है, अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है, तो इन दैट केस velocity of p with respect to a is velocity of p minus velocity of a. So this becomes a shortcut. Clear है? Yes, sir. Now एक एग्जांपल लेंगे। There is a road, there is a truck, इस पे एक मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा है, and this is moving with 5 meter per second. This is by So P, Q, R, and T. P stands for the man who is moving in bike with 5 meter per second. Q is a man who is at rest with respect to the truck, not with respect to ground. R is a man who is walking 1 meter per second towards this man, towards Q. And truck itself is moving to right with 2 meter per second. ठीक है? समझा?
हाँ सर। ना, यहाँ पे एक टेबल जैसा बनाता हूँ, आप मुझे वैल्यूज बताओगे। P Q R T, या पहले T लिखता हूँ, T P Q R T P Q R। आप पहले अच्छे से सोच लो। हाँ, मुझे बतानी है इसके रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे यहां पे एंट्री करूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक विच इज नेचुरली 0। यहां पे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, आगे समझे। यहां पे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ Q with respect to truck, velocity of R with respect to truck, velocity of truck with respect to V, velocity of P with respect to P. Naturally, these all are 0. ठीक है, बोलो बताओ क्या दिमाग में आएगा आपके। पहले अच्छा सोच लो, आप 2 मिनट सोच लो किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कहाँ भरनी है, फिर उसके बाद मैं The लिखूंगा। velocity of p with respect to t will be 3 meter per second. Velocity of The P right. with respect to T is how much? 3 meter per second. +3 और -3, लेफ्ट राइट क्या? Plus 3. Right. राइट साइड। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज vp माइनस vt। velocity of p with that is velocity of p minus velocity of t. तो velocity of p, what is velocity of p with respect to ground? यहाँ पे जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो वो 5 ग्राउंड है, meter तो इधर आ per रहा second. 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 2 दिस वे, सो आंसर इज 3 मीटर पर सेकंड। चलो बताओ यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, वेलोसिटी ऑफ q, वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, वो दिया ही है 0 है। ये ट्रक के अंदर रेस्ट पे बैठा, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे ही है। वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक 1 6 meter per second. -1 velocity of r with respect to truck, सर वो 1 डेटा ही -1 है। 1 ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ? या समझ लो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, मैं तुमको पहले वर्ड्स में लिख देता ऐसे, वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इटसेल्फ इज -1। ये 1 मीटर पर सेकंड ग्राउंड फ्रेम से नहीं जा रहा है, ये ट्रक के अंदर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सो वही वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है। नहीं समझा? समझा सर। नहीं, वैभव का डाउट था, क्षितिज किसका डाउट था? सर मेरा तो ओके, काव्या, काव्या इज देयर ना? Yes, sir. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये तो इजी आ रहा है ना समझ में? नो ओके, सो वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ही है, वो ट्रक के अंदर वो 1 से चल रहा है, ग्राउंड वाले को तो कुछ और दिखेगा, वो बाद में समझते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू p, ये भी 3 मीटर पर सेकंड। थोड़ा करेक्शन, -3 -3। ये बाइक वाले को लगेगा ट्रक पीछे आ रहा है, अगर p रेस्ट पे होता तो ट्रक तो पीछे आ रहा ना, भाई डिस्टेंस कवर, एक्चुअली ये दोनों ही आगे जा रहे हैं, बट अगर आप सोचोगे इसके लिए तो ये पीछे आ रहा है, इसके लिए ये आगे आ रहा है, तो इसके लिए ये इधर आ रहा है, तो -3 मीटर पर सेकेंड, राइट? हाँ हाँ हम लोग इसमें जो टेबल बनाया हमने उसमें हाँ। हम लोग देख कैसे रहे हैं, t/t देख रहे हैं, तो Horizontal t/t वर्ड देख रहे हैं कि t/p देख रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, वर्टिकल यहाँ पे, तो p/p देखा, p/, अभी q/p देखना, हॉरिजॉन्टल यहाँ रखना है, वर्टिकल यहाँ रखना, इधर हॉरिजॉन्टल रखो, इधर वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ q/p क्या आएगा? -3 velocity of q with respect to p is -3। भाई वो तो ट्रक वाली बात ही हो गई, मैं ट्रक के साथ ही तो इधर आ,
velocity of r with respect to p. -4. -4 पक्का? सर सेम ही होगा, हाँ सर, पक्का -3। पक्का। सर -4 गलत है? मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला, बाकी लोगों को सोचने तो हो सकता है तुम्हारा गलत हो सकता है, सोचने दो। काव्या, what is velocity of r with respect to p? सर 6 होगा। No. Let's see. Velocity of r with respect to p चाहिए, right? मुझे नहीं मालूम कौन सा फ्रेम में देखूं, चलो ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं, कभी कभी ज्यादा दिमाग चलता है। तो वेलोसिटी ऑफ r माइनस वेलोसिटी ऑफ p, तो ग्राउंड फ्रेम से r दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। p दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। p तो 5 जा रहा है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ r माइनस। अब वेलोसिटी ऑफ r कहां से लाऊं? ये वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है, व्हिच इज vr माइनस -3। नहीं, vr माइनस vt, तो ये -1 है। इस वेलोसिटी ऑफ r जिसका पता नहीं, ट्रक जा रहा है 2 से, तो वेलोसिटी ऑफ r इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करना, तो वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू p इज 1 - 5, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कई लोगों को ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिखाता हूं मैं कैसे। ये देखो, मैं ऐसे ही देख रहा था, ये 5 से आगे जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रक इधर आ रहा है 3 से, अच्छा ट्रक के अंदर और ये इधर से आ रहा है 1 से, तो मतलब ये तो 4 से इधर आ रहा है। नहीं समझा? बाइक वाले के रिस्पेक्ट में ट्रक इधर चला आ रहा है, ट्रक खुद आ रहा है 3 से, अब उस ट्रक के अंदर ये 1 से आ रहा है। कहाँ 2 से आ रहा है ना? नहीं बेटा ना, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट, ये खुद 5 से आगे जा रहा है, ये 2 से आगे जा रहा है, तो इसको तो ये लगेगा ना कि ट्रक मेरी तरफ चला आ रहा है, भले ये उसकी तरफ जा रहा है, बट ये इमेजिन करेगा मैं रेस्ट पे हूं तो ऐसा लगेगा जैसे ट्रक इधर आ रहा है, तो ट्रक उसकी तरफ चलते जा रहा है। कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से। अब उसके अंदर ये भी 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो 3 + 1 इधर 4 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा। ओके, तो सर हम लोग साइन कैसे पता कर सकते हैं? मतलब साइन कैसे, साइन का अंदाजा कैसे लगाएं? लेफ्ट इज नेगेटिव, राइट इज पॉजिटिव। अच्छा, तो मतलब हम लोग जो आदमी को देख रहे हैं, हाँ, जो वो अगर मेरे से राइट रहेगा, जा रहा है, हाँ वो इधर जा रहा होगा, तो मैं उसको बोल दूंगा वेलोसिटी प्लस। अगर वो इधर आ रहा है तो आई से वेलोसिटी नेगेटिव। सर जो आपने वो लेफ्ट इज माइनस और राइट इज प्लस लिखा है, वो इस केस के लिए कि सारे केस के लिए? देखो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। अगर मैं ये बोर्ड ऐसा उल्टा कर दूं तो आप बोलोगे सर अभी तो आपका प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस, वो अपने ऊपर है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी ऐसे सारे हैं, वो खुद से कंफ्यूज करने के लिए या कॉम्प्लिकेट करने के लिए डायरेक्शन बदल डालते हैं, बोलते टेक दिस एज पॉजिटिव, दिस एज नेगेटिव। तो इट्स अप टू यू, आप किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना चाहते हैं। बट सिंस हमारी बचपन से एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एवरी टीचर विल एडवाइज यू टू टेक दिस एज प्लस, दिस इज माइनस। तो बचपन से वही देख रहे हैं ना, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव, डाउन इज नेगेटिव, बाकी इट्स योर अप टू यू, तो आप अगर कुछ भी चूज कर सकते हो। क्वेश्चन पे कुछ लिखा नहीं हो तो राइट को प्लस और हाँ, हमेशा प्लस चूज करो ना, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? ओके। सारी दुनिया वही यूज करे, तुम भी वही यूज करो। वी कॉल इट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आगे बढ़े। ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में ट्रक का क्यू क्या हो गया? पहले तो अच्छा बता रहा था, अभी गलत बताने लगे। 0। अरे हाँ, वो तो डेटा ही वही दिया। वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, p को क्या लग रहा है, q क्या कर रहा है? -1 गया तो पहले अच्छा क्या बात कर रहे हो? वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, सर -3 1 सब ट्रायल ले लिया हुआ। +3 +3। अरे p को तो q को क्या लग रहा है? सॉरी वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q बोला ना?
हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो क्यू को क्या लग रहा है, पी आगे आ रहा है ना 3 मीटर पर सेकेंड से, +3। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इज +3। चलो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। -1. -1. Velocity of r with respect to q -1 मीटर पर सेकेंड। q के सर रिस्पेक्ट में पिछली r। बार मैंने पी को आर ले लिया गलती से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ना वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू r। सर 1 मीटर पर सेकेंड। पक्का? हाँ सर। Anyone else? हाँ सर 1 meter per second. 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सबका कंफर्म हो गया? मैं सोच रहा था कोई तो 3 बोलेगा, किसी ने बोला 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सॉरी, r विथ रिस्पेक्ट टू t -1 है, तो वेलोसिटी ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू r +1 हो जाए। पक्का ना, है किसी को डाउट है? मैं करके दिखाऊं बोर्ड पे? नहीं सर समझा। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू r। 4 मीटर पर सेकेंड। अब तो पता है वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू p वाज -4, तो ये +4 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू r 1। इसका उल्टा ही रहता है, राइट? देखोगे ना यहाँ पे सिमेट्री आएगा, नेगेटिव सिमेट्री बोलते हैं। ये 0 0 0, ये 3 -3, ये 0 -0, -3 3, -4 +4, -1 +1, -1 1, नेगेटिव सिमेट्री। वो तो है ही ना। वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t जितना होगा, वेलोसिटी ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू p उसका नेगेटिव होगा बस। ओके, यस सर। सर। सो ये हो गई कहानी रिलेटिव वेलोसिटी असाइन करने की, ढूंढने की, वो सारी चीजें हो गई। नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे काम की चीज है कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ हेल्प मिलने वाली है मुझे इससे। तो लेट अस सी कहाँ हेल्प मिलेगी। सो सम क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर विल सॉल्व अगेन, एंड ऑब्वियसली फ्यू न्यू क्वेश्चंस आल्सो व्हिच, मतलब जो हमने पहले ज्यादा टाइम लगाया था, अभी कम टाइम में करेंगे क्वेश्चन। सपोज देयर इज अ car, right, going this way, and there is a car going this way. Let me know this is A, this is B. This distance is suppose 100 meter. This number change ये जा रहा है। Velocity of A with respect to ground is, इधर जा रहा है 10 meter per second से। Velocity of B is 20 meter per second. Question is, how much time it will take for A or B to cross each other? For them to cross each other. किसी को भी A B को क्रॉस करे, B A को क्रॉस करे। So A is moving with 10 meter per second towards right, +10 है, velocity of B is +20, distance between them is 100. So how much time A will take to cover up B? A को कितना टाइम लगेगा B को कवर करने के लिए? हेलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने मोशन स्ट्रेट लाइन में भी तो देखे थे ना। हाँ बेटा, इस बार रिलेटिव मोशन से करके देखेंगे। सर इसमें एक कोई बार अच्छे वापस क्वेश्चन रिपीट करो ना। A को कितना टाइम लगेगा B को कवर करने के लिए? इतना टाइम, इतना तो मैं किसी को नहीं पढ़ाया, तो कुछ टॉपिक नहीं बताऊंगा तो भी
7.5 seconds. 7.5 second is wrong answer. एक कॉल आ गई थी तो मैं सुन नहीं पाया बाकी लोग आंसर। किसी और ने आंसर दिया कुछ? सर 10 सेकेंड। नहीं, डायरेक्शन कुछ देख रहे हो? कौन किधर कहाँ जा रहा है, कौन सी स्पीड से जा रहा है? Sir, question और एक बार repeat करोगे? सॉरी, Question repeat करोगे? हाउ मच टाइम ए टेक्स टू कवर अप बी और क्रॉस बी? ए बी को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर 3.5 सेकंड। नहीं मैंने, अरे कभी कवर नहीं करेगा, कैसी बातें कर रहे हो? एक तो ऑलरेडी पीछे है, ए धीरे आ रहा है 10 मीटर से, बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कैसे कवर अप करेगा? हेलो, Sir, Yes, मैंने sir. वो दोनों opposite Yes, सर direction एरो पे ध्यान ही नहीं speed गया, कम है उसकी। एरो पे ध्यान ही नहीं गया। मैं बोल रहा नहीं पढ़ाऊंगा तो भी बच्चे मीटर पे मिलेंगे। जो कभी नहीं मिलेंगे। वो धरती घूम के इधर आना पड़ेगा उसको, तब जाके मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटे? दोनों सेम डायरेक्शन, 20 से जा रहा है 10 से जा रहा है। जो आगे है वो और स्पीड से जा रहा है, नहीं? हाँ, हाँ सर। तो करना क्या है आपने, x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालो, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालो। देखो सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोलने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a चेक करो, उससे आपको पता चलेगा कि b a की तरफ आ रहा है या a से दूर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या है? vb माइनस va। ये 20 है, ये 10, ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या है? 100 meter. राइट। सो x ऑफ b, हाँ सेम साइन कैसे दिख रहा है? b सर का सेम पोजीशन डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो एक है, b का वेलोसिटी, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सेम डायरेक्शन में जाना नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ a अप्रोच करना, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, चलिए माइनस v माइनस, चलिए गलत। b का पोजीशन देख के a अप्रोच करना ना, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लिखना था। नहीं समझे? पोजीशन इसकी, अप्रोच इसका है ना। हेलो, हाँ, ये a है, मैं a हूं, मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन b की क्या है और मेरी वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b एंड पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a शुड बी ऑफ सेम साइन। नहीं? हाँ सर। ओके, सो नहीं दिस समझा शुड सर। सी x of b minus x of a basically is displacement of a। ये a का डिस्प्लेसमेंट होना है भाई, जो b यहां पे ना, a को वहां पहुंचना है, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ a हो गया ना। x of b with respect to a is basically Yes, displacement of a, हाँ? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ a। तो a का डिस्प्लेसमेंट इधर है और a की वेलोसिटी इधर है, तो पहुंचेगा कैसे? वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ सर। So displacement of a is plus 100, whereas velocity of a is minus 10 मीटर पर, कभी पास में नहीं आएंगे, राइट? तो velocity of a with respect to b और x of b with respect to दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब उल्टा कर देता हूं, velocity of a is 20 मीटर पर सेकेंड एंड velocity of b is 10 मीटर पर सेकेंड। अब बता कितना टाइम लगेगा मिलने के लिए?
सर 10 सेकंड में मिलेंगे दोनों। 10 सेकेंड्स में मिलेंगे। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था। कैसे हमने किया था? ये यहां से t सेकेंड्स में जाएगा 20t, ये आगे आएगा 10t, तो 20t माइनस 10t हम सोचते थे कितना होगा 100, तो t का वैल्यू हो गया 10। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, अब हम सोचेंगे मिलना है किसको? a को b से मिलना है, तो b के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? इसको मिलने के लिए b के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? b के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 100। तो b वहीं रहेगा, a आगे आना ना b के रिस्पेक्ट में। b के रिस्पेक्ट में a को कितना आगे आना? 100। और a का वेलोसिटी कितना है अप्रोच करने का? 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 100 होना है और रिलेटिव वेलोसिटी 10 है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 है, रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, तो टाइम टेकन एज 100 बाय 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आई बात समझ में? नहीं समझा? सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, a जो है b के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड b के रिस्पेक्ट में उसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या यार यहाँ पे? चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a है ना ये, तो b के रिस्पेक्ट में 100, तो पहले क्यों वैल्यू? ये तो पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट ना सर। सॉरी ये पोजीशन था यार, क्या थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। सी, ये पोजीशन b का विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो a का आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b है। थोड़ा सा मतलब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पहले भी सही लिखा था, अभी भी सही लिखा है। पिछले बार मैंने पोजीशन लिखा था, इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं सिंबल ही चेंज कर देता हूँ तो ही बेटर रहेगा, ऐसे लिख देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कर देता हूँ। यहाँ पे पोजीशन लिखा था, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a था, बट डिस्प्लेसमेंट है किसका? यहाँ से आने में a का डिस्प्लेसमेंट आएगा a विथ रिस्पेक्ट टू b। वापस बोलूं? नहीं सर, समझा। वो एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को लेके। तो ये b का पोजीशन है a के रिस्पेक्ट में प्लस 100, लेकिन जब मिलेंगे तब a का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू b होगा 100, तो 100 बाय 10 is 10 सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स टेक थर्ड केस। इस बार एक्सेलरेशन में ले लेता हूं। इस बार a का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन a का कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टूवर्ड्स दोनों राइट साइड, +1 +1 +1। वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है? कुछ और डाल देता हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन है ही। चलो अब बताओ कितना टाइम लगेगा a और b को क्रॉस करने के लिए दूसरे? बोलो। ओह सॉरी, बैटरी जाने वाली, I'll have to stop। चलो कल कंटिन्यू करेंगे।